नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कसूर शहर में। तो ये जानवर की जो दुम है उससे ये बाल उतार रहे हैं, तो हम इनसे पूछेंगे कि इसका क्या बनता है। भाईजान, इसका क्या बनता है ये इन बालों का? ਜਿਹੜੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੁਰਸ਼ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਇਹਦੇ ਬਣਦੇ ਜੀ। ਉਹ ਅੱਛਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬਾਕੀ ਬਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਹੈ ਉਹ ਮੱਛਦਾ। अच्छा, वो जलान वास्ते। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कसूर में और इस वक्त हम मौजूद हैं शकील साहब के साथ। ये इनकी टेंडरी में आप पीछे मेरे देख सकते हैं कि जो लड़के काम कर रहे हैं। तो इस वक्त चमड़े के हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुके हैं। जो चीज़ पहले 1 रुपये की थी अब वो 4 आने वाला हिसाब है, 25 पैसे में बिक रही है। और कुछ महकमे हैं जो इनको भी परेशान कर रहे हैं। ये लेबर लगी हुई है जो ये बच्चे रोज़ाना की रोटी अपने घरों में कमा के लेकर जाते हैं, इनके लिए भी मुश्किलात हैं। कई टेंडरीज जो हैं वो बंद हो चुकी हैं, कईयों को इन्होंने सील कर दिया है। तो उसके मतलब ये शकील साहब से जानते हैं। जी शकील साहब, इसके मतलब कुछ हमें बताएं। अस्सलाम वालेकुम सलाम सर जी, अपना जरा ना इतने महकमा मौसमियात वाले आते हैं तो वो कहते जी टैंडरियाँ सील करो, आपदा अपने प्लांट लाओ। अपनी अपनी फैक्ट्री में आप अपना प्लांट बनाएं, इज़ इट पॉसिबल? पहली बात तो ये है कि जुडिशल वाटर कमीशन ने आपको प्लांट लगाने का नहीं कहा उन्होंने। हालांकि 20 मरलियां ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਟੈਂਡਰੀਆਂ 30 ਮਰਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ। नहीं तो प्लांट तो इत्थे लगा है पहले। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ 40-50 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਹਰ ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਬਿੱਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੀਟਰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮੋਟਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਬੰਦ ਪਿਆ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अच्छा, तुसी सारे मंथली उन्होंने पैसे देंगे जी? ਸਾਰੇ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਿੰਨਾ ਪਾਣੀ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ 50 ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 40 ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 30 ਆਉਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ 60 ਆਉਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰਾ ਬਿੱਲ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। अच्छा, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਜੋ ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੈਸੇ ਦਿੰਦੇ ਹੋ? ਜੀ ਜੀ, ਉੱਤੇ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੀਟਰ ਲਾਏ ਨੇ ਯੂਨਿਟਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਜਿੰਨੇ ਯੂਨਿਟ ਜਿਹਨੇ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਹੈ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਆਪਣਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡਾ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਜ਼ਮੀਨ 'ਚੋਂ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੀ ਬੱਤੀ ਆਪਦੀ ਖਰਚ ਹੋ ਰਹੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਪਾਣੀ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਤੁਹਾਡਾ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਜਿੰਨਾ? ਹਾਂ, ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਬਾਹਰ ਰੋੜਦਾ ਹੈ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਲਾਂਟ ਜਾਂਦਾ, ਸਫਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਕੁ ਟੈਂਡਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੀਆਂ? ਤਕਰੀਬਨ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕਸੂਰ 'ਚ ਟੈਂਡਰੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੰਦਾਜ਼ਨ ਇੱਕ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਟੈਂਡਰੀ? ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 400 ਦੇ ਕਰੀਬ ਟੈਂਡਰੀ ਹੈ ਜਿੰਦੇ ਤੇ ਪਲਾਂਟ ਚੱਲ ਰਿਹਾ? ਪਲਾਂਟ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਤੇ ਬੰਦ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਪਲਾਂਟ ਜੇ ਬੰਦ ਹੈ ਤਦੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾ ਆਂਦੇ ਕਿ ਆਪਦੇ ਪਲਾਂਟ ਲਾਓ ਜ਼ਾਤੀ। ਤੇ ਇਹ ਛੋਟੀਆਂ ਟੈਂਡਰੀਆਂ 'ਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾ, ਮਤਲਬ ਮਹਦੂਦ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੇ ਜਿੰਦਾ ਛੋਟਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਉਹ ਕਨਾਲ 'ਚ ਟੈਂਡਰੀ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਾਏਗਾ ਪਲਾਂਟ? ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਾ ਨਿਗਾਹ ਮਾਰਿਆ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 100 ਬੰਦਾ ਲੇਬਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਸੀਲ ਹੋ ਗਈਆਂ ਤੇ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿੱਧਰ ਜਾਣ ਦੇ ਜੋ ਹਾਲਾਤ ਨੇ, ਨਹੀਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦਾ ਦੌਰ ਹੈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਨਾ ਤਾਮਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਬੰਦਿਆਂ ਨਾਲ। ਤੇ ਉਹ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਖਰਚਾ ਵੈਸੇ? ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਸੁਣਨ ਜਾਂਦਾ ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 2 ਕਰੋੜ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ 3 ਕਰੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੇ ਦੀ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਪਲਾਂਟ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹਾਂ, ਤੇ ਛੋਟੇ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਨੇਜ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਕਿਧਰੇ ਹੋਰ ਟੁਰ ਜਾਣ। ਇਹੋ ਹੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਈ ਟੈਂਡਰੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੀਲ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਟੈਂਡੀਆਂ ਬੰਦ ਸੀਲ ਹੋਈਆਂ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਚਮੜੇ ਦੇ ਰੇਟ ਦਾ ਕੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ? ਕੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀ ਦੱਸਣਾ। ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਗੋਕੇ ਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਸੈੱਟ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋ ਚਮੜਾ ਗਾਂ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਝੇ ਦੇ ਚਮੜੇ ਦੀ ਜ਼ਰਾ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਵਾਲਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਝੇ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਗੋਕੇ ਦਾ ਚਮੜਾ ਹੈ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਥੋੜੀ ਨਹੀਂ ਨਾ। ਬੱਕਰਾ ਤੇ ਛਤਰਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ। ਉਹਦੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵੀ ਕੋਈ ਬਿਹਤਰ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਛਤਰਾ ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਬਰਾਬਰ। ਉਹ ਈਦ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਗਰਮੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮਾਲ ਗਰਮੀ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਨਮਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਨਾਲ ਜ਼ਾਇਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਮਕ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਬਚ ਜਾਵੇ, ਉਹ ਰੇਟ ਸਹੀ ਵਟਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ? ਤਕਰੀਬਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ 100 ਦੇ ਕਰੀਬ ਹੈ। ਇਹ ਬੰਦੇ ਸਾਰੇ ਡੇਲੀ ਵੇਜਸ ਨੇ ਕਿ ਮਹਾਨਾ ਨੇ? ਇਹ ਆਪਣਾ ਸਾਰੇ ਠੇਕੇ ਦੇ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਠੇਕੇਦਾਰ ਨੇ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਹੀ ਇੰਨੀ ਸਾਡੀ ਤਾਦਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਲਾ ਨਾ ਕਰੇ ਕਿ ਜੇ ਟੈਂਡਰੀਆਂ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਮਹਿਕਮਾ ਮੌਸਮੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਮੌਲੀਆਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ, ਤੇ ਇਹ ਕੀ ਹਾਲਾਤ ਹੋਣਗੇ? ਇਹ ਇੰਨੀ ਦੁਨੀਆ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ, ਇੰਨੀ ਲੇਬਰ ਕਿੱਥੇ ਜਾਏਗੀ? ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਬਰਡਨ ਪਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਬਿੱਲ ਬੇਇੰਤਹਾ ਹੋ ਚੁੱਕੇ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਬਿੱਲ ਆਇਆ ਹੈ। ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ। ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ ਸੀ?
ਪਹਿਲੇ ਸਾਨੂੰ 3 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ 3 ਸਵਾ 3 ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਇਸ ਟਾਈਮ ਪੌਣੇ 5 ਲੱਖ ਆਇਆ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ 50% ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਗਏ ਜੀ ਉੱਤੇ, ਹਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 50% ਵਧਿਆ? ਕਾਰੋਬਾਰ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਇਹ ਕਈ ਟੈਣੀਆਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੈਠੇ ਵਿਹਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਵੇਲੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪ ਖਾ ਜਾਣਗੇ ਜੀ। ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ, ਐਵੇਂ ਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 400 ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 100 'ਚ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ, 300 ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਵੇ ਦੀ। 300 ਬੰਦ ਪਈ ਹੋਏਗੀ। ਇਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਮੇਰੀ ਗੁਜ਼ਾਰਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇਹ ਹਾਲਾਤ ਦੇਖਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਤਬਕਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤਾਵਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ, ਕਿੰਨਾ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਿੰਨਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਚਮੜਾ ਲੈਦਰ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਜੈਕਟ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੱਤੀ ਹੁੰਦੀ, ਸਾਰੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਧਰੋਂ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਡਾਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪੈਸੇ ਆਣੇ ਨੇ। ਜੇ ਅਗਰ ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਫਿਰ ਮਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ, ਤੇ ਜਿੰਨੀ ਜੈਕਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਸਪੋਰਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਰੀ ਕਸੂਰੋਂ ਚਮੜਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜੈਕਟ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਉਂਦਾ। ਜੈਕਟ ਉਹ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਉਧਰ ਵਾਪਸ ਆਈ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਲੱਥੀ ਹੁੰਦੀ ਲੰਡੇ ਦੀ, ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ 90% ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜੈਕਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਰੀ ਆਪਣਾ ਪੈਂਟ ਬਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਹੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਹਾਂ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ 100 'ਚ 10% ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਮੜੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ 10,000 ਦੀ ਜੈਕਟ 15,000 ਦੀ ਜੈਕਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਵੈਸੇ ਵੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਤੇ ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਇੱਥੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ? ਜੁੱਤੀਆਂ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜੁੱਤੀ ਆਪਣਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਜੈਕਟ ਜੁਕਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੈਂਟਾਂ ਪੁੰਡਾਂ ਦਸਾਨਾ ਦਸੂਨਾ ਬਣਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ। ਜੁੱਤੀ ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਕੋਈ ਅੱਛਾ ਸੋਲ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਲੈਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ 10-10 20-20 ਹਜ਼ਾਰ 50-50 ਹਜ਼ਾਰ ਲੱਖ 2-2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜੀ। ਸਹੀ ਹੈ। ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਅੱਛੀ ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਰੇਟ ਲੈਣਾ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਕੈਮੀਕਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਇਹਦੇ ਰੇਟਾਂ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਜੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਥੋੜੇ ਨੇ ਰੇਟ ਕਮ ਹੋਏ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਜੀ। ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਸੁਣਿਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਰੇਟ ਘੱਟ ਹੋਏ ਨੇ। ਹਾਂ, ਰੇਟ ਆਪਣਾ ਨਾ ਕੰਮ ਐਸੇ ਪਾਸੇ ਹੋਏ ਨੇ ਨਾ ਕਿ ਇਸਤੇਮਾਲ ਇੰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੋਰਾ ਆਪਣਾ ਕਰੂਮ ਦਾ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 11,500 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਕਰੀਬਨ ਉਹ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸੋਡੀਅਮ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਅਸੀਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ 10,000 ਦਾ, ਉਹ ਇਸ ਟਾਈਮ 7,6500 ਰੁਪਏ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਥੋੜਾ ਨਾ ਪ੍ਰਾਈਸ ਨੀਚੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛਾ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਸ ਕੁਆਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕੀ ਨਾਮ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ? ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਮਾਝਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਤੋਂ ਥੱਲੋਂ ਬੰਛੋਲ ਲੱਥੀ ਹੈ, ਲੇਅਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੇਅਰ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਬੰਛੋਲ ਲਹਿਦਾ ਵੇਚਨੇ, ਇਹਨੂੰ ਲਹਿਦਾ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਜੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਮਾਰਕੀਟ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਕੋਈ 20% ਕਸੂਰ 'ਚ ਵੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, 20% ਕਸੂਰ 'ਚ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੈ? ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਇਹਦੀ ਤਿਆਰੀ ਹੁੰਦੀ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਹੀ ਹੁੰਦੀ? ਇੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਤਿਆਰੀ ਪੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਿਆਰ ਹੋਦੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਮੇਨ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਇਹਦੇ ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ? ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰੇ। ਜੀ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਇੱਥੋਂ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਮਾਲ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਪੇਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਸ਼ਡਿਊਲ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਉਹ ਅੱਛੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ? ਪੇਮੈਂਟ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਅਸੀਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਆਦੀ ਫੈਕਟਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ 15 20 ਸਾਲ ਦੇ ਬੰਦੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਸਹੀ ਇਮਾਨਦਾਰ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਊ ਦੇ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ 3 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ 50% ਅਸੀਂ ਕੈਸ਼ ਹੀ ਸੇਲ ਕਰਨੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਈ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਇੱਕ ਦੋ ਦੋਸਤ ਮਿਲੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਈ ਪੈਸੇ ਹੀ ਮਾਰ ਗਏ ਨੇ ਸਾਡੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਆਪਣਾ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਬੰਦੇ ਮੁਫਤਲੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਕਸੂਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਦਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਉਹ ਹੀ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਹਾਂ, ਐਂਡ ਯੂਜ਼ਰ ਸਾਰਾ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ। ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿੰਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਿਆਰੀ ਹੈ ਤੇ ਕਸੂਰ ਵੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਹੀ ਭੇਜਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਸਿਆਲਕੋਟ ਭੇਜਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਇਹ ਮਾਲ ਅੱਗੇ ਬਾਹਰ ਐਕਸਪੋਰਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਹਾਂ, ਸਿਆਲਕੋਟ ਦੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਜਿਵੇਂ ਦਸਾਨਾ ਬਣਦਾ, ਜੈਕਟ ਬਣਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਬਣਦੀ, ਪੈਂਟ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ ਐਕਸਪੋਰਟਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੋਂ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਦੇਣ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ? ਇਹ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣਾ ਨਾ ਟੈਂਡਰੀ, ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਟੈਂਡਰੀ ਇਹਦਾ ਨਾਂ ਹੈ। ਕਸੂਰ ਟੈਂਡਰੀ ਹੈ, ਵੱਡੀਆਂ ਯੂਸਫ ਟੈਂਡਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬਾਹਰ ਹੀ ਭੇਜਦੇ ਨੇ? ਨਾਲ ਦੇ ਉਹਦੀ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕਸੂਰ ਟੈਂਡਰੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਬਾਹਰ ਦੇ ਮੁਲਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਬਾਹਰ? ਇੱਥੇ ਤਿਆਰ ਕਸੂਰ ਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਬਾਹਰ ਭੇਜਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਹੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਤ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਪਾਣੀ ਵਾਲੀ ਜਾਂ ਦੂਜੀ ਦੀ ਜੀ? ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਿੱਤੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਟੈਂਡੀਆਂ ਕਿਹੜੀ ਵੱਡੀਆਂ ਨੇ? ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਹੈ, ਨਾਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਫੈਕਟਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਤਕਰੀਬਨ ਕੋਈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਲਾਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਾਈ ਪਾਰਟਸ ਉਹ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀ ਉਹ ਬਣਾਉਂਦੇ ਨੇ ਹੋਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਜਾਂ ਕੁਛ ਇੰਜ? ਹੋਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੇ ਹੋਦੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਹੁਣ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ
ਪਾਣੀ ਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਗੰਦ ਲਹਿਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗੇ ਦੀ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਦੁਬਾਰਾ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੋਵੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਮਸ਼ੀਨ ਲੱਗਿਆ ਦੀ ਤੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਪਲਾਂਟ ਲੱਗ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਫੈਕਟਰੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਹੀ ਪਾਣੀ, ਬਾਹਰ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਨਾਲੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਫ਼ ਉਹਦੇ ਨਾਲੇ ਹੀ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਨਾਲੇ 'ਚ ਭੇਜਣਾ? ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਬਾਹਰ ਇਸਤੇਮਾਲ ਪਾਣੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਸ਼ਕੀਲ ਸਾਹਿਬ। ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇਵੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਰਕਤ ਦੇਵੇ, ਇਹਨੂੰ ਚਲਾਵੇ। ਤੇ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ, ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇਖ ਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਮਸਾਇਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਥਰੂ ਅਗਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮਸਾਇਲ ਵੀ ਹੱਲ ਹੋਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਵੇ, ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਖਾਨਦਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨੇ, ਜਿੰਨਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚੱਲੇ। ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं कसूर में। ये जो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है इसके अंदर, और अब बैठे हैं हम इनके इस ट्रीटमेंट प्लांट के जीएम गाजिब साहब के पास। तो इस प्लांट के मतलब वो थोड़ा सा हमें ब्रीफ करेंगे, इसके मतलब मालूमात देंगे। जी गाजिब साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू जी। तो इसके मतलब थोड़ा सा हमें बताएं इस प्लांट के मतलब, ये कैसे काम कर रहा है और इसके क्या क्या तरीक़ेकार हैं? ये जी एक प्री ट्रीटमेंट प्लांट है, इसको हम CEPTP कहते हैं, कॉमन एफ्लुएंट प्री ट्रीटमेंट प्लांट। ये 2001 में टैनिंग इंडस्ट्री के लिए लगाया गया था, लेदर टैनिंग इंडस्ट्री के लिए। और नॉर्मल सा इसका कोई हार्ड एंड फास्ट इसमें हम केमिकल्स यूज़ नहीं करते हैं। हम मेजरली रिलाई करते हैं अपने प्लांट के ऊपर, ऑक्सीडेशन के ऊपर और अपना लगून सिस्टम के ऊपर। और ये इन्हांस आपकी इंडस्ट्री इन्हांस करने के लिए लगाया गया था कि आपकी इंडस्ट्री को फ़ायदा हो। जो पानी जो एक्सक्रीट करती है आपकी टैनिंग इंडस्ट्री, वो टॉक्सिक होता है, तो इसकी टॉक्सिसिटी को हम जो है ना ख़त्म करते हैं बिफोर वी डिस्चार्ज द वाटर इनटू वाटर बॉडीज़। यहाँ से पानी जो है वो सतलुज रिवर में जाता है आफ्टर ट्रीटमेंट। ये पानी ये फसलों के लिए यूज़ हो सकता है? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अच्छा, तो फिर आपने इसका रास्ता को लहदा बनाया? ये सीधा सतलुज रिवर में जाता है। ये फसलों में कोई वो उसको फसलों वाले रास्ते से काट ले? आफ्टर ट्रीटमेंट भी मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि ये फसलों में यूज़ हो। आफ्टर ट्रीटमेंट? इवन आफ्टर ट्रीटमेंट में, क्योंकि ये प्री ट्रीटमेंट प्लांट है, प्राइमरी ट्रीटमेंट प्लांट है। अनलेस हम इसको सेकेंडरी स्टेज या टर्शरी स्टेज पे लेके जाएं और इसको हम रोज़ाना टेस्ट करें और इसके अंदर जो केमिकल्स हैं उसको देखें, अनलेस हम इसको टर्शरी स्टेज पे नहीं लेके जाते, हम इसको फसलों के लिए यूज़ नहीं कर सकते। तो ये एक कितना पानी आ जाता है? मतलब 400-500 टैंडीज है मेरे नॉलेज में ये आया। इस प्लांट की डिज़ाइन कैपेसिटी इज़ 12,600 क्यूबिक मीटर्स पर डे। एक दिन जो है हम 12,600 क्यूबिक मीटर पानी ले सकते हैं। तो ये कितना पानी आता है? इस वक्त हम अपग्रेडेशन की बात कर रहे हैं रोज़ाना। इस वक्त जो पीक सीज़न है, जो बड़ी ईद के बाद इनका पीक सीज़न होता है, पीक सीज़न में पानी हमारे पास ज़्यादा आता है, मोर देन 12,600 आता है, जिसकी वजह से हम अब करंटली कोलैबोरेट कर रहे हैं विद द गवर्नमेंट ऑफ पंजाब, गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। वी आर ट्राइंग टू रीच बैक टू यूनिडो। ये 2001 में जब प्लांट लगा था, इसमें कंट्रीब्यूशन है यूनिडो की भी, UN की भी इसमें कंट्रीब्यूशन है। उन्होंने हम जितनी मशीनरी थी उन्होंने हमें डोनेट की थी। तो वी आर ट्राइंग टू गेट एवरी वन ऑन बोर्ड। आपके जो माहौलियात के डिपार्टमेंट है उनको भी ऑन बोर्ड करके, तो हम इसको वी आर ट्राइंग टू टेक इट अप टू द सेकेंडरी लेवल एटलीस्ट।
और इसकी कैपेसिटी भी हम बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, कैपेसिटी इसमें ये जो आपकी फैक्ट्रीज़ हैं, ये टेंडरीज हैं, इसमें उनका क्या किरदार है इसको चलाने में, या इसका किसी किस्म का उनका क्या हिस्सा है? हम वाटर बिल्स लेते हैं, जितना पानी वो यूज़ करते हैं, जितना पानी वो गंदा करते हैं, वो उसको हम चार्ज करते हैं। अच्छा, आप उनसे ये पर मंथ होता है या क्या, कैसे आप उनसे पैसे लेते हैं? एवरी मंथ। Every month? टेंडरीज के अंदर बोर्स किए हुए हैं जहाँ से पानी एक्सक्रीट करते हैं, निकालते हैं यूज़ करने के लिए। उन बोर के ऊपर हमने अपने वाटर मीटर्स लगाए हुए हैं। ये कितने रकबे में ये प्लांट बना हुआ है? इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग ये 50 एकड़्स होगा, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 50 एकड़। तो मुझे एक टेंडरी वाले बता रहे थे कि अब उन्होंने कहा है ये माहौलियात वालों ने कि अपनी अपनी फैक्ट्री में आप अपना प्लांट बनाएं। इज़ इट पॉसिबल? पहली बात तो ये है कि जुडिशल वाटर कमीशन ने आपको प्लांट लगाने का नहीं कहा। उन्होंने अच्छा, ये अफवाह है? अफवाह है। वाटर ट्रीटमेंट सिस्टम का उन्होंने नहीं कहा, उन्होंने क्रोम रिकवरी सिस्टम का कहा। एक केमिकल है जो इंडस्ट्री में यूज़ होता है, उसको क्रोम कहते हैं। क्रोम इज़ हैवी मेटल और वो कैंसरस है, और उसका एक प्रॉपर डिस्पोजल जो है वो लाजमी है। मोर देन प्रॉपर डिस्पोजल, अगर आप उसको पानी में इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद पानी आप फेंक देते हैं, वो जो एक्सक्रीटेड वाटर है उसमें से आप वापस क्रोम को रिकवर कर सकते हैं। उसके दो फ़ायदे होते हैं, एक तो एनवायरमेंटल इफेक्ट्स उसके कम होते हैं, दूसरा एक टेनरी को अगर आप दोबारा एक केमिकल वो यूज़ करते हैं, वो पानी फेंक देते हैं, उस पानी में से दोबारा अगर आप क्रोम रिकवर करके वो यूज़ करेंगे तो उनके अपने प्रॉफिट मार्जिन भी इंक्रीज़ होंगे। ये जो आप कह रहे हैं क्रोम रिकवर करने के लिए, उसके लिए कितनी जगह रिक्वायर्ड होगी? डिपेंड करता है आपका हर टेनरी के हिसाब से कि उनका रोज़ का इस्तेमाल कितना है पानी का। फर्ज करें वो एक कनाल की टेनरी है, उसमें 5-6 उनके वो लगे हैं गोल से जो चलते हैं, डोल जिसको कहते हैं, तो उसके लिए कितनी जगह होगी? वो यही कह रहे हैं कि हमारे पास छोटी छोटी जगह है, उधर इतना बड़ा प्लांट लगा है, ये हमें कह रहे हैं प्लांट लगाए, हम कैसे लगा सकते हैं? हम कॉमन प्लांट्स की तरफ उनको लेके जा सकते हैं कि कॉमन कुछ लोग मिलके, या हम इंडस्ट्री के अंदर कॉमन क्रोम रिकवरी प्लांट्स लगा दें। इस वक्त ये डिस्कशन जो है वो ये सारा जो मैटर है अंडर डिस्कशन है कि हमने इसको कैसे करना है, लेकिन डेफिनेटली हमें क्रोम रिकवरी प्लांट्स लगाने हैं, क्योंकि इतना क्रोम हम ज़ाया कर रहे हैं और वो इन्वायरमेंटल जो आपके इन्वायरमेंट को डैमेज कर रहा है, इनफैक्ट वो हम रिकवर करके उसको दोबारा इस्तेमाल कर लें तो टैनिंग आपकी जो इंडस्ट्री है उसके प्रॉफिट मार्जिन्स में भी उनका फ़ायदा होगा। और जो चीज़ हुकूमत को सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करती है वो है एनवायरनमेंट के ऊपर इसका इफेक्ट जो है वो कम होगा। बिल्कुल, आपने ठीक है, आप एक बहुत अच्छी पोस्ट पे बैठे हैं। तो ये अगर वो लगाते हैं एक प्लांट, मैक्सिममली कोई आइडिया है, रफ सा आइडिया को उनका कितना खर्चा आ सकता है इसमें? ये देन अगेन इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि उनकी सेल्स कितनी है, उनका काम कितना है, वो कितना पानी एक्सक्रीट करते हैं, उनको कितना बड़ा स्टोरेज टैंक्स चाहिए, किस क्वालिटी के स्टोरेज टैंक्स वो बनाते हैं, किस मटेरियल के बनाते हैं, कितना वो दिन में प्रोसेसिंग उनकी जो है वो 10,000 लीटर्स की है, 20,000 की है, 30,000 की है, डिपेंडिंग ऑन कि उनकी सेल्स कितनी है, डिपेंडिंग ऑन उनका काम कितना है। ये हर इंडस्ट्री को अगर इस तरह की कोई चीज़ सामने आती है कि हर इंडस्ट्री ने अपना लगाना है, तो ये हर इंडस्ट्री के हिसाब से उनको कोटेशंस जाएंगी और वो कोटेशंस एक इंजीनियरिंग फर्म देगी, हम नहीं देंगे। वो इंजीनियरिंग फर्म के साथ रब्ता करेंगे, वो अपने सारे नंबर्स उनको दिखाएंगे कि जी हम पीक टाइम में पानी इतना इस्तेमाल करते हैं, हमें इतने स्टोरेज टैंक की कैपेसिटी का स्टोरेज टैंक चाहिए एंड ऑल दैट। ये सारी जो है इवैल्यूएशन के ऊपर है। फिल वक्त ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं? किस चीज़ का? ये जो टेनरीज के अंदर लगाने का प्लान अंडर डिस्कशन है। क्रोम रिकवरी डेफिनेटली लगाने। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस के हर टेनरी अपना लगाए या फिर हम कॉमन क्रोम रिकवरी प्लांट्स लगा लें इंडस्ट्री एरिया के अंदर, 4-5 डिपेंडिंग ऑन द टोटल एफ्लुएंट जितना भी हमारे पास आ रहा है उसके ऊपर। देयर आर 2 डिफरेंट वेज टू गो अबाउट इट। मकसद ये है कि आपने क्रोम को रिकवर करना है, क्रोम का डिस्चार्ज जो है वो पानी के अंदर जो हो रहा है उसको कम करना है, उसको ख़त्म करना है। तो उसके तरीके आप जो मर्ज़ी अपना लें, वो आप इंडस्ट्री को कहें कि जी वो अपना लगा लें या कंबाइंड लगा लें, वो अंडर डिस्कशन है कि हमने इसको मूव फॉरवर्ड कैसे करना है, हमने इसके ऊपर आगे कैसे चलना है। मेरा ना अभी एक सवाल सामने आया था, इसलिए मैं उसके मतलब थोड़ा सा मैं जानना चाहता हूं कि वो कह रहे थे कि जी माहौलियात वाले पूरा प्रेशराइज कर रहे हैं और अगर हम वो कहते हैं लगाएं, अगर हम नहीं लगा रहे तो वो हमारी टेंडरी को बंद कर देते हैं। कुछ बंद भी किए बकौल उनके, पर मैंने नहीं कोई बंद देखी। तो मैं ये चाह रहा था कि
इसका कुछ खुलासा हो जाता, सामने आ जाता। मैं इसलिए ये पूछ रहा हूँ, वरना वो तो आप तो चला रही रही हैं। हाँ जी, हमारा बेसिकली जो इदारा है वो पानी को ट्रीट करने के लिहाज से है। जो करंटली सिचुएशन चल रही है वो जुडिशल वाटर कमीशन, एनवायरनमेंट डिपार्टमेंट और टैनर्स के बीच में चल रही है। तो इतनी क्लैरिफिकेशन मेरे पास नहीं है। मेरी इल्म के मुताबिक तो सील का जिस तरह आप कह रहे हैं कि आपने कोई नहीं देखी, मुझे भी शुरू में इस तरह की कोई थोड़ी सी बात हुई थी, लेकिन मेरा ख्याल है उसके ऊपर कोई स्ट्रिक्ट हार्ड एंड फास्ट एक्शन नहीं हुआ, क्योंकि देन अगेन वी कम बैक टू द सेम पॉइंट के अंडर डिबेट है ये बात कि शुड इट बी इंस्टॉल्ड इंडिविजुअली इन एवरी टैनिंग यूनिट या फिर एक कॉमन एफ्लुएंट प्री ट्रीटमेंट प्लांट, क्रोम रिकवरी ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाए। ठीक है, हमारी तरफ से अगर आप रिकमेंडेशन लेंगे तो हमारी तरफ से रिकमेंडेशन यही है कि जी कॉमन लग जाए तो बेहतर है। मैं भी इसी हक में, अगर कॉमन लग जाएगा तो उन पर बर्डन नहीं पड़ेगा। बट देन द क्वेश्चन अराइजेस कि कॉमन भी लगाने हैं तो किसने लगाने हैं, फंड किसने करना है? वो तो इनको आपस में करना पड़ेगा कंट्रीब्यूशन। किनको? ये टेंडरीज वालों को। इन एनी केस अगर ये इंडिविजुअल लगाएं या कॉमन लगाएं, लगाने हैं, ये दिस थिंग इज़ डिसाइडेड कि लगाने हैं। देयर इज़ नो वे अराउंड इट। क्रोम रिकवरी प्लांट लगाने भी चाहिए, लगने भी चाहिए, क्रोम रिकवर भी होना चाहिए। एनवायरमेंटल हैज़र्ड्स को देखते हुए, एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स को देखते हुए, और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि अगर रिकवर्ड क्रोम आपकी टैनिंग इंडस्ट्री दोबारा यूज़ करती है, फॉर इंस्टेंस जो नंबर्स मेरे पास हैं इस वक्त, जो पाउडर क्रोम ये यूज़ करते हैं, पाउडर फॉर्म में क्रोम आता है, ये यूज़ करते हैं लेदर को टैन करने के लिए। इसकी करंटली जो प्राइस है इट गोज़, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, 600 रुपीज़ पर kg एंड प्लस ये मार्केट में बिक रहा है। और जब हम क्रोम रिकवर करते हैं, क्योंकि हमारे पास KTWMA के अंडर एक क्रोम रिकवरी पायलट प्लांट है, और वो पायलट प्लांट इसलिए इंस्टॉल किया गया था ताकि हम अपनी इंडस्ट्री को इनकरेज करें कि वो अपने क्रोम रिकवरी जो लगा सकता है या जो इससे फ़ायदा उठाना चाहता है वो अपना क्रोम रिकवरी प्लांट लगा ले। तो उसके लिए हमने इनकरेज करने के लिए 2001 में यूनिडो ने एक पायलट प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो अगर उसके नंबर्स मैं आपसे डिस्कस करूं तो क्रोम रिकवर करके जब दोबारा इस्तेमाल करते हैं, रिकवरी कॉस्ट जो क्रोम की है वो तकरीबन लेस दैन 200 रुपीज़ है। तो जहां पे आप 600 रुपये का पर kg क्रोम ले रहे हैं, वहाँ पे आप 200 रुपये में उसको रिकवर करके दोबारा यूज़ कर सकते हैं पर kg। वेरी गुड, ये तो बड़ी अच्छी बात होगी। तो ये थोड़ी सी अवेयरनेस की ज़रूरत है आपकी टैनिंग इंडस्ट्री को। एक लॉन्ग रन में अगर वो इंडिविजुअल लगाएं या कॉमन लगाएं, एक लॉन्ग रन में उनकी इंडस्ट्री के लिए बेनिफिशियल होगा और हमारे लिए एनवायरमेंटल इफ़ेक्ट्स को ये रिड्यूस करेगा। मैं उनसे बातचीत मेरी 2-4 बंदों से हुई है, वो इसको लगाने से गुरेजा नहीं है। सिर्फ उनको ये मसला है कि यार ये पता नहीं कितनी जगह करेगा, हमारे पास कनाल की है, 20 मरले की है, 30 मरले की है, तो ये प्लांट पता नहीं कितनी जगह लेगा, हमारे लिए वो मुश्किल है। वरना वो लगाने से गुरेजा नहीं है, वो लोग पैसे भी लगा सकते हैं। बिजनेस कर रहा है जो बंदा तो वो अपने मफाद के लगा, और जो आपने जैसे आपने ब्रीफ किया कि 600 की चीज़ बाद में उन्हें 200 की मिलेगी, तो उनके तो पैसे वहीं से कवर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे, ठीक है ना। लेकिन उसका इफ़ेक्टिव यूज़ आपकी इंडस्ट्री को पता होना चाहिए। यहाँ पे आपकी इंडस्ट्री में नॉलेज जो है ना वो उतना नहीं है जितना एक इंडस्ट्री में, एक स्टैंडर्ड की इंडस्ट्री में होना चाहिए। अब रिकवर्ड क्रोम का यूज़ और पाउडर क्रोम का यूज़ थोड़ा डिफरेंट है, जिसकी वजह से रिकवर्ड क्रोम के यूज़ पे अमूमन इस तरह की बातें सुनने को मिलती हैं कि जी लेदर ख़राब हो जाता है। इट्स नॉट बिकॉज के रिकवर्ड क्रोम कोई बुरी क्वालिटी का होता है या इस तरह होता है। उसका इस्तेमाल जो है वो अगर आपको सही इस्तेमाल पता हो, सही रेसिपी पता हो, क्वांटिटी कितनी में इस्तेमाल करना है, क्वांटिटी कितनी में इस्तेमाल करना है, क्योंकि ड्रम्स के अंदर आप यूज़ करते हैं क्रोम को, तो पाउडर क्रोम के साथ जो बाकी केमिकल्स आप यूज़ करते हैं उसकी एक परसेंटेज होती है। रिकवर्ड क्रोम के साथ वो डिफरेंट हो जाती है। अगर आप सेम रेसिपी सेम परसेंटेज के साथ दूसरे केमिकल्स यूज़ कर रहे हैं और क्रोम और रिकवर्ड क्रोम में भी सेम कर रहे हैं जो आप पाउडर क्रोम में कर रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो इफ़ेक्ट करता है। तो डेफिनेटली इसके ऊपर हमें वर्कशॉप्स करनी पड़ेंगी अपनी इंडस्ट्री में, जो हम प्लान कर रहे हैं कि हम रिकवर्ड क्रोम के ऊपर वर्कशॉप्स करें, इसके यूज़ के ऊपर वर्कशॉप करें। हमारे पास एक लैब है, उस लैब में बाकायदा रिकवर्ड क्रोम का जो लिक्विड होता है उसको टेस्ट किया जाए, उसकी एक लैब रिपोर्ट बने, ताकि हम इनको बताएं कि जी अगर आपने रिकवर्ड क्रोम यूज़ करना है तो उसके साथ आपकी बाकी केमिकल्स की परसेंटेज क्या हो सकती है,
ताकि आप अपना लेदर ख़राब ना करें और आप अपने प्रॉफिट मार्जिन जिस लिए आप क्रोम रिकवर्ड क्रोम यूज़ कर रहे हैं प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ करने के लिए वो आप इफ़ेक्टिवली वो कर सकें। बहुत अच्छा मशवरा है आपका कि उनके साथ एक बैठक की जाए, क्लासेस की जाएं, ताकि उनको हर चीज़ बताई जाए, हर टेंडरीज वाले को बुलाया जाए या इनके इकट्ठा करके एक जगह पे वो उनको कुछ बताया जाए। ये बहुत शुक्रिया, बड़ा अच्छा लगा मुझे आपसे बातचीत करके। तो आपने मुझे बड़ी मुफीद बात इसके मतलब बताया। ये हमारे लिए, ये पूरी कौम के लिए, पाकिस्तान के लिए ये फ़ख्र की बात है कि आप जैसे काबिल ऑफिसर्स यहाँ बैठे हैं जो अपने लोगों के साथ बहुत अच्छे तरीके से इसको चला रहे हैं, और ये चलेगा, हमारे कारोबार चलेंगे, ये पहिया जब चलेगा तो सारा पाकिस्तान चलेगा। बहुत शुक्रिया नाजरीन, मैं हूँ आपका होस्ट अजीम चौधरी, कैमरामैन ज़ीशान के साथ। शुक्रिया सर, थैंक यू।